Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I don't know what is your situation. मुझे नहीं मालूम आपकी क्या परिस्थिति है। I am in Mumbai. मैं मुंबई में हूँ। There's a lot of rain here. बहुत सारा बारिश हो रहा है, There's a lot of chaos. बहुत सारा कुछ इतर पुतर है, A lot of stress. बहुत ज्यादा टेंशन है, A lot of work. बहुत ज्यादा काम है। Everything is stopped because of rain. सब कुछ रुक गया है बारिश के कारण। How is it there for you? वहां पर कैसा है? I want to tell you that God is in control. मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर नियंत्रण में है। Sometimes when things don't happen in time, जब समय में कोई चीज नहीं होता it stresses us. तो उसके कारण बहुत ज्यादा टेंशन होता है। We are all willing to wait upon God, but not willing to wait with people. हम परमेश्वर के लिए रुकते हैं, लेकिन लोगों के लिए हम नहीं रुकते। It's very difficult. बहुत ही मुश्किल है। The worries of the world, the things that attract us in this world, all can be so big and real sometimes. ये दुनिया की चिंताएं और इस दुनिया में जो कुछ भी हमें आकर्षित करता है, ये सब कुछ एक चिंताओं की बात है। In this world, there are many tribulations, इस दुनिया में बहुत ज्यादा क्लेश है, but Jesus has overcome this world. लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया में जीत हासिल की है। That's our encouragement this morning. और ये ही मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा। May this be our encouragement through the afternoon and through the night. और ये आपके लिए एक प्रेरित बने रहे सुबह और शाम के लिए। I just want to invite you to pray with me. मैं आपको न्योता देना चाहूंगा कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। Father, I just pray that you bless my brothers and sisters wherever they are. हे परमेश्वर पिता, मेरे भाइयों बहनों को तू आशीर्वाद दे, वो जहां पर भी है। Meet their needs. उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। Provide for them. उनकी जरूरत को तू देख। Help them, Lord. उनकी मदद कर। Be with them. उनके साथ तू रहे। Give the solution to those who are troubled and don't know a way to go. और जो कोई भी परेशानी में है, चिंताओं में है, परमेश्वर तू उन्हें उत्तर दे। Help them, Lord. उनकी मदद कर। Be with us. हमारे साथ तू रहे। Give me wisdom and understanding so I can share your word to people. मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर, ताकि मैं तेरे वचन को सिखा सकूं Let your word go out and multiply. और तेरा वचन बाहर जाए और ज्यादा बढ़े। In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। See, we have been studying through the gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, We're in chapter 4. और अभी हम अध्याय 4 में हैं। We just studied the parable of the soils, which I call, but normally it is written as the parable of the sower. और हमने जो है मिट्टी का दृष्टांत हमने किया है, जिसको कहा जाता है बीज बोने वाले का दृष्टांत। Here we saw the sower is the same. हमने यहाँ पे ये देखा कि जो बोने वाला है वो एक है, The seed is fruitful and is the same. और जो बीज है वो फल लाता है और वो भी एक समान है, But the soil is different. लेकिन मिट्टी अलग है। The soil represents the heart of a person. और जो मिट्टी है वो हमारे दिल को दर्शाता है। And we just studied this till verse 20. और हमने 20 वचन तक हमने अध्ययन किया, But verse 20 caught my attention because that's where everything is summed up to. और जो वचन 20 है उसमें मेरा ज्यादा ध्यान गया, क्योंकि ये सब कुछ बताता है। In verse 20, we see clearly every believer's dream. और वचन 20 में हम ये देख सकते हैं कि सारे विश्वासी लोग सपना देखते हैं। In verse 20, we read Jesus saying, "But these are the ones sown on good soil." और वचन 20 में यीशु मसीह कहते हैं, और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वे है, They hear the word and receive it जो वचन सुनकर ग्रहण करते and bear fruit. और फल लाते हैं, 130 times as much, कोई 30 गुना, 160, कोई 60 गुना, and 100. और कोई 100 गुना। Every Christian wants to prosper. हर एक क्रिस्ती को समृद्धि चाहिए। Every Christian wants to flourish. हर एक क्रिस्ती को बढ़ोतरी चाहिए। Everybody in the kingdom of God desire to grow and expand their boundaries. और सब लोग यही चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में वो और ज्यादा बढ़े और उनकी सीमाएं बढ़े। A person who does a business wants many branches or more customers. जो कोई भी व्यापार करता है वो चाहता है कि उनका और ज्यादा ब्रांचेस खुले, वो ज्यादा व्यापार करे। The one who is working as an employee wants a better salary or greater positions. और जो कोई भी काम करता है वो चाहता है कि उसको अच्छा प्रमोशन मिले या उसको अच्छा वेतन मिले।
The one who's doing ministry wants the ministry to go many places, more people added in the kingdom of God. और जो कोई भी सेवकाई कर रहा है वो यही सोचता है कि उनकी सेवकाई बढ़े और ज्यादा लोग परमेश्वर के राज्य में आए। But all this can be summed up to the word called multiplication. लेकिन ये सब कुछ को जोड़कर हम एक शब्द में आते हैं जिसको कहा गया है गुना करना। We don't know how multiplication works in this world, इस दुनिया में गुना कैसे काम करता है मुझे नहीं मालूम, but in the kingdom of God, it's very simple. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये बहुत ही आसान है। If a person's heart is ready to receive, अगर एक व्यक्ति का दिल तैयार है ग्रहण करने के लिए, is willing to change, अगर वो बदलने के लिए तैयार है, is willing to see his own or her own state, अगर वो अपने दिल की स्थिति को जानता है, then there is a possibility of that person to grow and flourish and prosper. तो हो सकता है कि वो जब उसे अपने दिल की स्थिति पता चलता है तो वो बढ़ने के लिए तैयार होता है, वो समृद्ध पाने के लिए तैयार होता है। Multiplication is what Jesus is talking here, that happens through a good heart. और गुना जो है, बढ़ोतरी जो है, वो होता है जब आपका दिल सही हो। If you clearly pay attention, Jesus says the one who has a good heart, or the seed that is sown in good soil, अगर आप ध्यान से देखें, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसका दिल अच्छा है, इसका मतलब ये है जिसका मिट्टी अच्छा है, they hear वो सुनते हैं the word, परमेश्वर का वचन, number one. सबसे पहली बात। Number two, they receive it. दूसरा है वो उसे ग्रहण करते हैं। Not everybody who hear receive it. जो कोई भी सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रहण कर रहे हैं। Many people reject it. बहुत से लोग नकारते हैं। Many people hear it, they don't take it to their heart. बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन वो अपने दिल में ग्रहण नहीं करते, They forget. वो भूल जाते हैं। That is why we have to say it again and again. इसलिए हमें बार बार ये कहना पड़ता है। Third is that they bear fruit. तीसरा है कि वो फल लाते हैं। Not every tree bears fruit. सारा पेड़ फल नहीं लाता, Not every tree that bears fruit is a good fruit. और जो भी पेड़ में फल आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा फल लाता है। So we're talking about good fruit. हम यहाँ पे अच्छे फल के बारे में बात कर रहे हैं। And they all come out in various numbers as a result. और सब जो भी फल लाते हैं वो अलग अलग नतीजे से वो आते हैं। One brings 30 times of growth. एक जो है वो 30 गुना ज्यादा बढ़ोतरी लाता है, 160 times. दूसरा है 60 गुना, And 100 times. और तीसरा है 100 गुना। But those who are worried about the things of this world, लेकिन जो कोई भी इस दुनिया की चिंताओं में है, those who are really not willing to change and have a place in their heart for the word of God to sink in and go deeper, और जो कोई भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर का वचन लेते हैं लेकिन अपने दिल में वो ग्रहण नहीं करते, उसे अपने दिल के जड़ में नहीं बसाते, and those who are in the way of the world trying different things, different options, and Jesus becomes one of the options for them. और कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, सारे ऑप्शंस को वो देखते हैं और यीशु मसीह भी उनके लिए एक ऑप्शन है। They will produce nothing. और वो लोग कोई भी फल नहीं लाएंगे। Only 25% of the people in the ministry or in the kingdom of God is going to bring forth fruit. सिर्फ 25% जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में फल लेकर आने वाले हैं। Not everybody is going to bring forth fruit. सब लोग वो फल नहीं लेकर आ पाएंगे। Isn't that interesting? क्या ये दिलचस्प नहीं है? Isn't that challenging? क्या ये आपके लिए एक चुनौती नहीं है? Isn't that a warning? क्या ये आपके लिए एक चेतावनी नहीं है? Are you a person multiplying in Christ? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु मसीह में बढ़ रहे हो? Are you a person who is bearing fruit in Christ? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फल लेकर आ रहे हैं? Are you a person who is receiving Christ and His word on a daily basis? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं अपने हर रोज के जीवन में? Are you a humble person who is willing to hear and work? Put yourself in a place to hear and study the word of God. क्या आप नम्र वाले व्यक्ति हो? क्या आप सुनते हो? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर काम करने वाले व्यक्ति हो? If you're not, अगर आप नहीं हैं then you won't bear fruit. तो आप फल नहीं लेकर आएंगे। You can't say, I'm born in a Christian family, so I'm bearing fruit.
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं क्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं क्रिस्ती हूँ और मैं फल ला रहा हूँ। I have 3 children, that means God has blessed me with children, so that means I'm bearing fruit. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे परमेश्वर ने बच्चों का आशीर्वाद दिया है इसलिए मतलब मैंने फल लाया है। Oh, I have a good income, I have a good job, I have a own house, so that means I am blessed, so that means God is really pleased with me. आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास बहुत अच्छा काम है, मुझे बहुत अच्छा कमाई है, परमेश्वर ने मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है इसलिए मैं फल ला रहा हूँ। The question is, सवाल ये है, what is your heart like? आपका दिल की स्थिति कैसी है? Is your heart like the soil that is in the way where the Satan can come and distract and take away everything in your heart, has access to you? क्या आपकी जो मिट्टी है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे शैतान आके कभी भी उसे ले जा सकता है और शैतान को आपके जीवन में पूरा स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है आपके जीवन में? Are you a person who has a heart like a rock that can just hear but is not going to go deeper, letting God's word take root and go deeper? क्या आपका दिल एक पत्थर जैसा है जो बीज बोया गया है लेकिन वो अंदर तक नहीं जाता, वो जड़ नहीं पकड़ता, इसके कारण वो सूख जाता है? Are you a person who has a heart that is so distracted about the things of this world, the beauty of the world, the great riches of this world? क्या आपका दिल ऐसा है कि आप सिर्फ दुनिया की चिंताओं में, दुनिया के धन में ही पड़ा हुआ है? And you won't be able to multiply. तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। You won't be able to produce fruit in the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य में कोई भी फल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। If you want to grow in Christ and your heart is like a rock, you would never be able to know Christ deeper. अगर आप यीशु मसीह में हैं लेकिन आपका दिल पत्थर जैसा है तो आप कभी भी यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे पूरे गहराई में। If you say I'm following Christ but doing traditions, going to church, doing this, doing that, and you don't have a heart to follow Jesus and love and forgive, man, you're not actually a follower of Christ. अगर आपका दिल सिर्फ रीति रिवाज के पीछे है या तो फिर आप सिर्फ जो भी दुनिया में होता है उसके पीछे है और आप कहते हैं कि आप क्रिस्ती है लेकिन आप किसी को माफ नहीं कर पाते, It's very difficult. तो ये बहुत ही मुश्किल है। See, we saw many varieties of distractions that people today face. और हमने बहुत अलग तरीके का जो है आकर्षण देखा है जो लोगों में आता है। If you read verse 17 onwards, I'm just doing an overview for you, okay? अगर आप वचन 17 में देखेंगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपरी तर से बता रहा हूँ। In verse 17 you see, they don't have any root in themselves because their heart is like a rock. परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। And then we see in verse 18 there are a lot of troubles. और फिर हम वचन 18 में देखते हैं कि बहुत सारे परेशानियां आती है। And then we see thorns. और उसके बाद हम झाड़ियां देखते हैं। In verse 19 we see the seductiveness of wealth and riches. और 19वां वचन में हम धन का धोखा देखते हैं। And verse 19 again we see the desire of other things. और हम उसी में हम देखते हैं कि उन अन्य वस्तुओं का लोभ। All this is 3 kinds of hearts, distractions. और ये 3 तरीके का आकर्षण है जो लोग इसको देखकर भटक जाते हैं। These 3 kind of hearts have all these types of distractions and oppositions and things like that. और ये 3 तरीके के जो दिल है उनके अंदर ये सारा आकर्षण जो है पाया जाता है। And if they are not going to pay attention to these things and reject these things, they will never be able to hear the word of God. Even if they hear it, they will not be able to receive it. अगर इनका दिल ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर का वचन को सुनकर भी उसे सुनेंगे नहीं और परमेश्वर के वचन को अपने वो दिल में नहीं लेंगे और परमेश्वर को नकारेंगे। And they will not be able to bear fruit. और वो लोग फल नहीं लेकर आ पाएंगे। See, if a seed is sown and the seed has to have a place to take root, and then it brings forth a little bit of a seedling, and then it grows and grows and grows slow and steady and bears fruit. जब एक बीज को बोया जाता है धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है, उसमें पानी दिया जाता है, बढ़ बढ़ के वो झाड़ हो जाता है और धीरे धीरे वो फल लेकर आता है। See, right now we see the seed is similar, the sower is the same, but it's the soil that is different. और हम ये देख पाते हैं कि जो बोने वाला है वो एक है और जो बीज है वो भी एक समान है, लेकिन मिट्टी जो है वो अलग है। So the seed is good. तो बीज अच्छा है, It can bring forth fruit for sure.
उससे जरूर फल आएगा। The sower is not doing a bad job, he's doing a good job. और जो बोने वाला है वो भी जो बोने वाला है वो भी अच्छा काम कर रहा है। But the place where the word of God is sown matters. लेकिन जिस जगह पे परमेश्वर का वचन को बोया गया है वो मायने रखता है। We can preach to 1,000 people, हम 1000 लोगों को प्रचार कर सकते हैं, but how many really receive and change their life? लेकिन उसमें से कितने लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण करके अपने जीवन को बदलते हैं? We want to go to heaven. हमको स्वर्ग में जाना है, We want forgiveness from sins. हमको पाप से क्षमा चाहिए, We want eternal life. हमको अनंत काल का जीवन चाहिए, God has done everything for us through the Son on the cross. और परमेश्वर ने वो सब कुछ किया है। उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को क्रूस में चढ़ाया, And because of His sacrifice, all the payment is taken care. और यीशु मसीह के बलिदान के कारण सब कुछ चुकता किया गया है। So you and I are delivered from hell because we believe in Jesus Christ. और आपको और मुझको नरक से मुक्ति मिली है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया गया है। So if this is what has been given to you, अगर ये हमें दिया गया है everything is done by God. और सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, Your response is a good heart. That's it. और आपका जवाब उसके बदले में यही है कि आपको अपना अच्छा दिल देना है। You're receiving all these things without any of your efforts. आपको ये सब कुछ परमेश्वर से मिला है बिना आपके मेहनत के। Don't you think you should have a good heart? तो आपको नहीं लगता कि आपका दिल अच्छा होना चाहिए? You're not saved by your work. आपके खुद के कामों के द्वारा आपको बचाया नहीं गया है, It's by the work of Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह के कामों के द्वारा आपको बचाया गया You're है, saved by grace. और हमें अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है। That's the gospel message. और यही सुख समाचार का And प्रचार as you है। hear this message, if you cannot receive it and do the work of changing your heart and rejecting the world and sin, अगर ये सुनने के बाद भी अगर आप इसे ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर के वचन को आप नकारते हैं और पापों में चले जाते हैं, then your heart is not in the right place. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दिल है वो सही जगह पर नहीं है। So if you search your heart, you will know what kind of a heart do you have. अगर आप आपके दिल को खोजते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका दिल कैसा है। See, right now Jesus is actually in the sea on a boat and there's crowd standing at the beach and watching Jesus. अगर हम देखें तो यीशु मसीह नाव में बैठे हैं और बाकी जो सब भीड़ है वो झील के किनारे खड़े हैं। And Jesus is clearly talking to people who are expecting the kingdom of God to come with a bang. और जितने भी लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है बहुत धमाके से होने वाला है, And they're waiting for Jesus to be coronated as the king very soon. और उनको वो यही इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक राजा बनकर आएंगे। One side, people rejecting Jesus. एक जगह पे ऐसा है कि वो यीशु मसीह को नकार रहे हैं, The other side, a group, the crowd which is following Jesus wants him to become the king. और दूसरे जगह पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यीशु मसीह राजा बन जाए, So that they can get everything for free and everything is taken care. ताकि उनको सब कुछ मुफ्त का मिले और उनका सब ख्याल रखा जाए, Like a political power. जैसे एक राजनीति सामर्थ। But here Jesus is saying, the kingdom of God is going to grow slowly and steadily like a seed coming out of the ground and bearing fruit. लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे से बढ़ने वाला है, जैसे बीज को बोया जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ के वो झाड़ होता है। And a process of growth internally that is bringing forth fruit externally. और अंदर से वो बढ़ता है और उसमें प्रक्रिया होता है और वो बाहर से दिख के आता है। It takes time, उसके लिए समय लगता है, but steadily, लेकिन धीरे से वो बढ़ता है। A development that he's talking about is like a seed that is sown in the ground, is not seen, but slowly the green seedlings come out. वो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि एक बीज को बोया गया है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से एक जड़ उठ
फूट के बाहर आता है। So what is inside our heart, nobody sees. जो कुछ भी हमारे दिल के अंदर है कोई भी नहीं देख पाता, But the fruit will reveal what's in your heart. लेकिन जो फल आप लेकर आते हैं उससे पता चलेगा कि आपके दिल के अंदर क्या है। So the word of God is growing based on the internal condition of a man's heart. तो परमेश्वर का वचन जो है वो बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है आपके दिल के दशा के अनुसार। So if your heart is right, अगर आपका दिल सही है, if you respond well, अगर आपने उसको जवाब सही से दिया, if you're not just worried about you, your life, your property, your family, अगर आप सिर्फ अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, अपने संपत्ति के बारे में या अपने परिवार के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, you'll bear fruit 30, 60 and 100. तो फिर आप जो है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना ज्यादा फल लेकर आएंगे। All the ones who have a good heart has produced results. जिनका भी दिल सही है उन्होंने एक अच्छा फल लाया है, अच्छा नतीजा लाया है। That's what Jesus is saying. और वही यीशु मसीह कह रहे हैं। Jesus is saying, you don't bring forth fruit, you scribes and Pharisees, because your heart is not right. और यीशु मसीह कह रहे हैं तुम फरीसी और शास्त्री लोग, तुम कोई भी अच्छा फल नहीं ला रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल ही सही नहीं है। Because you don't have a good heart, a good ground produces good fruit. क्योंकि तुम्हारा दिल ही सही नहीं है, क्योंकि एक अच्छा मिट्टी अच्छा फल लेकर आता है। How is your heart? आपका दिल कैसा है? Jesus is just worried about your heart. और यीशु मसीह सिर्फ आपके दिल को लेकर चिंतित है। It's not how much you give. ये मायने नहीं रखता कि आप कितना दे रहे हो, It's not how many times you pray a day. या तो फिर ये मायने नहीं रखता कि कितने घंटे आप प्रार्थना कर रहे It's हो। not how many hours you go and sit in the church. ये मायने नहीं रखता कि कलेशा में जाके आप कितने घंटे वहां पे बैठे रहते It's not हैं। about how many times you finish the Bible or memorize the scriptures. ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने बार बाइबल को पढ़ा है या कितना आपको वचन आपने याद किया है। It's not about how many meetings you attend and prayer meetings you participate in. और ये भी मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रार्थनाओं की मीटिंग में गए हो और कितना सारा मीटिंग आपने अटेंड किया है। All these things are good, ये सब कुछ अच्छी बात है, but it's all about your heart. लेकिन आपका दिल का स्थिति जो है वो मायने रखता है। Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? Do you love your brother? क्या आप आपके भाइयों से प्रेम करते हो? Do you love your sister and your neighbors like you love yourself? क्या आप आपके बहन से प्रेम करते हो या अपने पड़ोस से प्रेम करते हो जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो? The Pharisees and the scribes claimed to love God. और जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं वो यही जताते थे कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, But they never loved Jesus. लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। If they would see him as a man, as a Jewish citizen, as an Israelite, they would have considered him as a brother. अगर वो यीशु मसीह को मानते थे कि वो एक यहूदी भाई है तो वो उन्हें अपना भाई मान लेते, They never loved him like a brother. लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह से भाई की तरह प्रेम नहीं किया। They never treated him like a neighbor. उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को अपने पड़ोस की तरह नहीं माना। They never loved him like they loved themselves. उन्होंने उनसे वैसा प्रेम नहीं किया जैसे वो अपने आप से प्रेम करते थे। They loved themselves so much, they decided to reject and manipulate people against Jesus. और शास्त्री और फरीसी लोग अपने आप से इतना प्रेम करते थे कि वो उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया और उनको नकार दिया। It's not how well the sower is sowing or the preacher is preaching. ये मायने नहीं रखता कि बीज बोने वाला कैसे बीज बोता है या प्रचारक कैसे प्रचार करता है, It's how well you receive. लेकिन उसे आप कैसे अपने दिल में ग्रहण करते हो। A lot of people give ratings for preachers. Oh, his sermon was good. It's so powerful. Wow. बहुत से लोग जो है प्रचारक को आजकल एक रेटिंग दे देते हैं कि हाँ इसने बहुत ही अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा था, But how much do you receive? लेकिन आपने कितना ग्रहण किया, What have you done with it? उससे आपने क्या किया है आपके जीवन में? Think about it. इसके बारे में आप सोचिए। Is Satan taking away what is God sowing in your heart? क्या शैतान वो बीज आपके दिल से लेके जा रहा है जो परमेश्वर ने बीज आपके दिल में बोया है? Is the word of God able to cling to your heart and take root, go deeper? क्या परमेश्वर का वचन आपके दिल के गहराई तक गया है और उसने जड़ पकड़ लिया है? Is your heart like a rock? या फिर आपका दिल एक पत्थर जैसा है? Are you worried about and attracted to the interests and the desires and the things of this world? क्या आप इस दुनिया की चिंताओं में हैं और इस दुनिया के धन के चिंताओं में हैं? Are you building a relationship with God based upon your forefathers' faith? क्या आप आपका विश्वास आपके पूर्वजों के विश्वास के अनुसार आप बढ़ा रहे हो?
Be careful इसलिए आप ध्यान दें, because you can be deceived. क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है, Because your heart matters. क्योंकि आपका दिल मायने रखता है। Every individual heart matters. हर एक व्यक्ति का जो दिल है वो मायने रखता है। How is your heart? Is it ready to receive Jesus? आपका दिल कैसा है? क्या आपका दिल तैयार है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए? Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come to you this moment and ask you to reveal the state of our hearts. हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमारे दिल की स्थिति को हमें बता। Lord, forgive us. परमेश्वर हमें माफ कर, Help us. हमारी मदद कर, Remove all the distractions in our lives. और जो कुछ भी आकर्षित चीजें हैं वो सब कुछ हमारे जीवन से तू निकाल, Help us to run away from it. Give us strength to fight against it. और हमारी मदद करके ये सारी चीजों से हम भाग जाए और हमें ताकत दे के इससे हम लड़ सके, Give us strength and wisdom to resist the devil, Satan. और हमें ताकत दे के हम शैतान को भगा सके। Lord, give me and everyone around grace to grow in you. और परमेश्वर मुझे और बाकी सब लोगों को तू अनुग्रह दे ताकि हम तुझ में बढ़ सके। Help us, Lord. हमारी मदद कर परमेश्वर। Lord, help us not to be distracted by the fame and the name culture today. और परमेश्वर हमारी मदद करके हम इस दुनिया के नामों से या हमें प्रसिद्ध होना है, इस सारे चीजों से हम दूर हो जाए। Help us to not desire riches of this world. और हमारी मदद करके इस दुनिया के धन के ऊपर हमारा इच्छा ना हो, Let our eyes be upon you. हमारा आँख सिर्फ तुझ पर हो, Let our hearts long for you, Jesus. और हमारा दिल सिर्फ तेरे पीछे हो। परमेश्वर Thank you for everything you've done for us. धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ भी तूने हमारे साथ किया है, In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's meet with the other episode. अभी हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।